Hello, sixth class students. You know very well our earth includes land, water, air, plants, animals, and us. It is made up of both living and non-living things. All these things are interdependent. For example, we need air to breathe, water to drink, land to build our homes, and plants and animals to feed on. Okay. Our Earth is the only planet of the solar system that has life. All the other planets do not have those conditions that are required to sustain life. और वो कौन कौन सी दो कंडीशन होती हैं? Such as presence of air and water. Air and water and land are the three domains of the earth where different life forms flourish. These domains also represents the three states of matter, that is solid, liquid and gas. These domains interact with each other to provide everything that is required by various life forms on earth. Okay, and you know very well the surface of the earth is made up of land and water. The land masses cover 29% of the surface of the earth, and the rest 71% what? Consists of water bodies like seas and oceans. Okay. The surface of the earth is not the same everywhere. It is irregular and uneven in varying degrees. The largest water bodies are known as the oceans, and the large land masses are called continent. And the domain of the earth that consists of the solid crust is known as the lithosphere, and the domain of water is called hydrosphere. The earth is surrounded by a layer of air which is called what? Atmosphere. Okay, student. So, the lithosphere, the hydrosphere, biosphere, atmosphere, these are known as realms of the earth. Okay, or one word is here given. These realms meet each other at biosphere, which means the sphere of life. So student, we are starting our new chapter, and that is realms of the earth. Okay, so let's start the chapter. So sixth class, this one is our the fifth chapter. Name of the chapter is realms of the earth. Okay, and these are the some learning objectives that we will read in this chapter. So first one is given atmosphere, biosphere, hydrosphere and lithosphere. And the next one, continents and oceans. And next, how to protect environment. And the last one, global warming. Okay, so let's start. Students, these components of the earth are called realms of the earth or spheres. Which components? Which components, students? Air, water, land and the sphere of life. Okay, so these includes what? Lithosphere. There are the realms of the earth. First one is lithosphere. Okay, second one, hydrosphere. Third one, atmosphere.
and part of these three spheres, which one? Lithosphere, hydrosphere and atmosphere, क्या करते हैं ये? मेक अप द बायोस्फीयर. इनसे क्या बनता है? मेक अप द बायोस्फीयर. Okay. Biosphere means this is the zone where life exists on the earth. Life exists on the earth. Biosphere बताता है कि यहीं पर हमारी लाइफ क्या है? एग्जिस्ट करती है. ओके. And the student, the names of each of these spheres have been derived from Greek words for what they are made up of. What? Atmo. Atmo means क्या होगा? Air. Okay. And bio. Here is given the bio word. And the bio means life. Litho. Is given the litho, and the litho for rocky. Okay, and hydro for water. Is that clear? And the student, here is given the lithosphere. Lithosphere क्या है? Is the realm of land. ये भी realm of land है. It consists of 3 layers. Okay, it consists of 3 layers. And which one? Crust, mantle and core. Okay, and of these the core is further divided into the inner core and outer core. Okay, students, the deeper we go inside the earth, जितना ही हम नीचे तक जाते जाएंगे अर्थ के, the hotter it becomes. As a result, the layer change from a solid to a semi-solid state gradually. Only the inner core remains solid due to the immense force exerted on it by the upper layer. All of these layers are composed of rocks and minerals. Crust forms the uppermost layer. Mantle is the middle layer, while the core is the innermost layer of the lithosphere. Got it? And the student, hydrosphere is the sphere of water. Sphere of water. Got it? And it covers nearly 71% of the earth's surface. और इसी कारण क्या होता है? The earth is known as blue planet. Okay? Hydrosphere includes oceans. इसमें क्या क्या includes होते हैं? Includes क्या क्या चीज़ें शामिल है? Oceans, rivers and lakes on the surface of the earth. It also includes water in the aquifers under the ground, clouds in the air and snow and glacier on mountain peak. Okay? एक तो जो अर्थ की सरफेस के अंडरग्राउंड वाटर होता है वो भी इसमें इंक्लूड होगा, और जो ग्लेशियर पर और माउंटेन जहाँ पर पानी एक बर्फ़ की जमी हुई अवस्था में होता है वो भी हाइड्रोस्फीयर का पार्ट होगा, और क्लाउड्स और हवा में जो नमी होती है वो भी इसी का पार्ट माना गया है. वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म्स इज कंस्टेंटली मूविंग. आपको पता है
पानी कॉन्स्टेंटली मूविंग करता है। कैसे करता है? वाटर इन रिवर्स एंड ओशंस मूव्स इनटू द एटमॉस्फेयर। ओके, एंड द कंटिन्यूअस मूवमेंट, और इस जो लगातार ये मूवमेंट चलता रहता है, द कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ वाटर इज ऑल्सो नोन एज वाटर साइकिल। तो इसको क्या बोलेंगे? ये वाटर साइकिल होता है। एंड स्टूडेंट, यू नो वेरी वेल, इट कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेजेस। और इस वाटर साइकिल में क्या 3 स्टेजेस होती हैं? इवापोरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन। इज दैट क्लियर? नाउ द नेक्स्ट वन इज एटमॉस्फेयर। Student, atmosphere is the realm of air. Realm of air. Okay. It is basically a mixture of gases. It includes nitrogen. Mixture of gases. इसको बोला गया है mixture of gases. और इसमें कौन कौन इंक्लूड है? विच वन गैसेस? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो नोन एज CO2, वाटर वेपर, एंड वेरियस अदर गैसेस। और बहुत सी गैसेस हैं जो कि इसका पार्ट है। वेरियस अदर गैसेस। ओके, एंड द स्टूडेंट, एटमॉस्फेयर एनवेलप्स द अर्थ लाइक अ ब्लैंकेट। ये ब्लैंकेट जाना गया है इसका। इट मीन्स अ लेयर ऑफ एयर सराउंड द अर्थ। एक हवा की परत है जो कि एटमॉस्फेयर, ये एक हवा की परत है जिसको एटमॉस्फेयर बोला गया है, और ये अर्थ के चारों तरफ ऐसे फैली हुई है। ओके, एंड इट एक्ट्स, ये किस तरह से काम करती है? इट एक्ट्स एज अ गिगांटिक फिल्टर। एक्ट एज अ गिगांटिक फिल्टर। आपको पता है फिल्टर क्या करता है? जैसे कि फिल्टर हर एक चीज़ों को प्योरीफाई करके हमें साफ चीज़ें प्रोवाइड करता है। तो ये जो एटमॉस्फेयर है ये भी क्या करते हैं? वर्क्स एज अ गिगांटिक फिल्टर, कीपिंग आउट हार्मफुल रेज ऑफ द सन। और नेक्स्ट क्या है? कीपिंग आउट हार्मफुल, जो सन से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है जो कि बहुत ही डेंजरस है हमारे लिए, ये उनसे हमें प्रोटेक्ट करता है। हार्मफुल रेज ऑफ द सन। ओके, एंड एटमॉस्फेयर ऑल्सो सपोर्ट्स लाइफ ऑन द अर्थ। स्टूडेंट्स, the atmosphere is a blanket of gases surrounded the earth and held in place by earth's gravitational pull. Okay, or the atmosphere extends up approximately 1600 किलोमीटर above the earth surface। जैसे कि हमारी अर्थ सरफेस है यहाँ पर, और ये क्या है? 1600 किलोमीटर तक, ये 1600 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। ओके, extends up to approximately 1600 kilometer. However, the density of the atmosphere is not uniform everywhere. It varies with height. Okay, it is very dense near the surface of the earth, as most of the gases are concentrated in the lower 32 kilometer only. As we go up, जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे, atmosphere thins considerably until it gradually merges with space. The atmosphere is extremely important for life to exist on earth and protects it. Okay, and the students, the air in the atmosphere consists of nitrogen. How many percentage? 78%. Oxygen 20.9%. Okay, and other gases, argon
0.9%, and अदर गैसेज सच एज, उस अदर गैसेज में कौन कौन से गैसेज आएंगे? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, nitrous oxide, hydrogen, helium, neon, ozone and methane are also present in the atmosphere. Okay, carbon dioxide 0.03% और अदर गैसेज में आई ऑलरेडी टोल्ड, मैं आपको बता चुकी हूँ कौन कौन सी गैसेज आएंगी अदर गैसेज में, सच एज कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, ओजोन एंड मीथेन. गॉट इट? एंड द स्टूडेंट, इम्पोर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर. देखो एटमॉस्फेयर की बहुत ही हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है. वो कैसे है आप सब समझते हैं कि जितने भी इसमें गैसेस है उसका कोई ना कोई तो रोल होगा. ओके, सो सबसे जो मेन एसेंशियल गैस है वो क्या है यहाँ पर? ऑक्सीजन. सो ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर. ओके, सो ऑक्सीजन जो क्या है? ऑक्सीजन in the atmosphere is needed by all living beings. ये किन के लिए? जितने भी लिविंग बींग्स हैं हमारी अर्थ पे उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है. और वाई ज़रूरी है? फॉर ब्रीथिंग. किसके लिए? फॉर ब्रीथिंग, सांस लेने के लिए. ओके, और ये जो ऑक्सीजन हमें कौन प्रोवाइड करता है? हमारी एटमॉस्फेयर. और इसके अलावा और कौन सी गैसेस है? वेयर एज कार्बन डाइऑक्साइड. और इसके अलावा जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको कार्बन डाइऑक्साइड को हम CO2, ये इसका साइंटिफिक नेम है. ओके, CO2 इज नीडेड बाय प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस. इसकी ज़रूरत किसको होती है? नीडेड किसको? बाय प्लांट्स. किसके लिए? फॉर फोटोसिंथेसिस. You know very well what is the meaning of photosynthesis. Photosynthesis is a process in which the plants make their own food with the help of what? With the help of sunlight, water, minerals, okay, and carbon dioxide. And the student, the atmosphere provides insulation to the earth by absorbing the heat from the sun. ओके, और ये क्या करते हैं? इंसुलेशन की तरह काम करते हैं. क्या करते हैं? एब्जॉर्ब द हीट. हीट को ये एब्जॉर्ब करता है. एब्जॉर्ब द हीट. देखो हमारी अर्थ के टेम्परेचर बिल्कुल एक लाइफ सपोर्ट के लिए बहुत ही नीडेड है कि यहाँ पर जीवन चलता रहे अच्छे से, तो अर्थ का टेम्परेचर भी सुटेबल होना चाहिए. और वो सुटेबल कैसे होगा? जो ये क्या करता है? एटमॉस्फेयर सन से आने वाली जितनी भी हीट है, गर्मी है, उसको एब्जॉर्ब करते हैं, सोख लेते हैं. ओके, एंड कीप्स द हीट इनसाइड द एटमॉस्फेयर. और उस हीट को एटमॉस्फेयर के अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं. दस इट हेल्प्स द अर्थ इन स्टेइंग वार्म. और इससे क्या होती है हमारी अर्थ? स्टेइंग वार्म, गर्म रहती है. एंड दिस इज कॉल्ड द ग्रीन हाउस इफेक्ट. और इसी को क्या बोला गया है? ग्रीन हाउस इफेक्ट. देखो स्टूडेंट, अगर हमारी अर्थ का टेम्परेचर गर्म नहीं होगा तो यहाँ पर लाइफ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जितना भी वाटर है हमारी अर्थ में वो फ्रोज़न हो जाएगा, जम जाएगा, सारी चीज़ें जम जाएंगी, और जिससे कि जीवन संभव नहीं होगा. सो दैट्स वाई एटमॉस्फेयर यहाँ सबसे मेन रोल प्ले करता है. एंड वन इम्पोर्टेंट थिंग्स इज़ देयर स्टूडेंट, बहुत ही ज़रूरी है. वो क्या है? ओजोन गैस. देखो हमारी एटमॉस्फेयर में, आपको मैं आगे बताऊंगी, लेयर है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी अच्छे से. उन्हीं लेयर के बीच में एक ओजोन लेयर है बेटा, ओजोन लेयर. ओजोन लेयर में क्या है? ओजोन गैस है. ओजोन गैस वो क्या करती है? ओजोन गैस इन द एटमॉस्फेयर फिल्टर्स आउट द सन्स हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन. ये प्रोटेक्ट करती है हमें किससे? फ्रॉम, जो कि अल्ट्रावायलेट. ओके, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है जो कि कहाँ से आती है?
सन से आती हैं उनसे हमारी प्रोटेक्शन करती हैं। अगर बेटा ये अल्ट्रा वायलेट रेज डायरेक्ट हमारे एटमॉस्फेयर में एंट्री करने लगेंगी और तो हमें क्या होगा, डिजीज़ होने लग जाएगी, एक स्किन कैंसर भी होती है और बहुत सारे डिजीज़ होती चली जाएंगी, ओके, लिविंग बींग्स में। So this ozone gas also protect us from the sun's harmful ultraviolet radiation, okay? And one more student, atmospheric temperature। जो atmospheric temperature होता है, इसका temperature होता है वो क्या करता है, temperature greatly affect द क्लाइमेटिक कंडीशन। ये अफेक्ट डालता है, किस पर अफेक्ट डालता है, हमारा जो क्लाइमेटिक कंडीशन होती है। क्लाइमेटिक कंडीशन का आप जानते हैं ना कि कंडीशंस जिसमें कि क्लाइमेट हमारा हॉट है, समर है या मॉनसून सीज़न है, ओके, और वो उस पर बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट डालता है, लाइक लेवल ऑफ प्रेसिपिटेशन एंड स्टॉर्म्स, ओके। ओके स्टूडेंट, ऑल्सो वेरियस लेयर्स ऑफ द अर्थ एटमोसफियर। एटमोसफियर्स की बहुत सी लेयर हैं। वो फर्स्ट वन कौन सी आती है यहाँ पे, ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर, ओके, एंड द सेकेंड वन इज स्ट्रेटोस्फियर। थर्ड वन मेसोस्फियर, ओके, एंड नेक्स्ट थर्मोस्फियर, और उससे अगली आएगी एक्सोस्फियर, ओके। सो देयर आर द 5 layer of the atmosphere. First one is troposphere, the second one is stratosphere, mesosphere, thermosphere and exosphere. Just remember it, okay? And the student, I am showing you again the pie chart of the constituent of the air. There is given the percentage of the air कि कितनी कितनी हमारी एटमॉस्फेयर में एयर है और उनका क्या परसेंटेज है, ओके। सो okay, and the students, the earth atmosphere is divided into 5 layer on the basis of changes in the temperature with height, ओके। जितना ज़्यादा हम ऊपर जाते जाएंगे टेम्परेचर बिल्कुल चेंज होता चला जाता है और उसी चेंज के अकॉर्डिंग लेयर को डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट वन जो बिल्कुल सरफेस के पास है वो हमारी ट्रोपोस्फेयर है, ओके, ट्रोपोस्फेयर, और फिर स्ट्रेटोस्फेयर आती है। और वन यहाँ पर आपको अलग से कोई चीज़ें दिखाई दे रही है कि ओजोन लेयर कहाँ पर है, इन बिटवीन ऑफ ट्रोपोस्फेयर एंड द स्ट्रेटोस्फेयर, देन मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर, ओके। अब हम इसको बिल्कुल अच्छे से इन चीज़ों को रीड करेंगे कि ये जितनी भी लेयर है वो कितने किलोमीटर से कितने किलोमीटर तक फैली हुई है और क्या चीज़ें इनमें हैं जो इनको एक दूसरे से बिल्कुल अलग रखती हैं, ओके। ओके स्टूडेंट, दिस वन इज़ अ डायग्राम दैट शोज द लेयर ऑफ द अर्थ, और कैसे कैसे बटी हुई है। स्टूडेंट लिसन टू मी केयरफुली। ये हमारी अर्थ का सरफेस है, यहाँ से हमारी अर्थ का सरफेस स्टार्ट होता है और जो उसके ऊपर वाली सबसे फर्स्ट वन लेयर आएगी ये आएगी ट्रोपोस्फियर, एंड द ट्रोपोस्फियर इज़ द फर्स्ट लेयर अबव द सरफेस स्ट्रेचिंग फ्रॉम 8 किलोमीटर, ये 8 किलोमीटर टू 8 से लेके 18 किलोमीटर तक बेटा ये फैली हुई है, ओके। दिस लेयर इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट बिकॉज दिस इज़ वेयर वी लिव, और ये लेयर इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी लेयर में क्या है, हम लोग रहते हैं, ओके, वेयर वी लिव, यहीं पर हम लोग रहते हैं, एंड इट कंटेन्स द एयर वी ब्रीथ, और यहीं पर आपको क्या मिलेगी, एयर मिलेगी जो कि हम सांस के तौर पर उसको लेते हैं। ऑल ह्यूमन्स एक्टिविटी एज वेल एज वेदर चेंजेस, और वन मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स बेटा, वेदर चेंज भी यहीं पर होता है। सर्दी, गर्मी,
बारिश आना, तूफ़ान आना, सारे के सारे जितनी भी कंडीशंस होती हैं वो यहीं पर प्रेजेंट हैं. ओके, वेदर चेंजेस such as formation of clouds, rainfall, okay, take place in this layer. Got it? And the second one is stratosphere. And beta stratosphere, it lies above the troposphere. Troposphere से ऊपर वाली लेयर कौन सी आएगी? Stratosphere extended up to a height of 50 किलोमीटर. Just remember it. ये यहाँ 18 तक तो ट्रोपोस्फियर है, 18 से ऊपर 50 किलोमीटर तक कौन सी होगी? स्ट्रेटोस्फियर. Okay, above the surface of the earth. It is the coldest part of the earth atmosphere. ये सबसे क्या है? coldest part है हमारी अर्थ का. okay, coldest layer है ये. एटमोसफियर एट माइनस कितना? -90 डिग्री सेल्सियस क्या है इसका? मैटर्स बर्न अप इन द sorry beta, no, this one is not the coldest air. I extremely sorry. I am again repeating 8 to 18 किलोमीटर तक हमारी ट्रोपोस्फियर है. ओके, और उसके बाद जो सेकेंड लेयर आती है वो आती है स्ट्रेटोस्फियर. ये क्या है? 18 से स्टार्ट होती है और 50 किलोमीटर तक स्ट्रेटोस्फियर रहती है. ओके, द ओजोन गैस इन दिस लेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रेडिएशन. अब जस्ट रिमेंबर इट, यहाँ पर हमारी जो क्या है? ट्रोपोस्फियर है. ये 8 से 18 तक है. बेटा ध्यान से सुनना, 8 के बाद 9 आता, फिर 10 आता है. यहाँ जब 10 किलोमीटर होता है तो 10 किलोमीटर से लेके ऊपर 16 तक, ध्यान ऊपर तक स्ट्रेटोस्फियर में हम जाएंगे तो 20 तक किलोमीटर तक यहाँ पर हमारी कौन सी मिलेगी? ओजोन. यहाँ हमारी मिलेगी ओजोन लेयर. ओके, ओजोन लेयर. इट मीन्स द ओजोन लेयर कहाँ मिलेगी? इन बिटवीन ऑफ द ट्रोपोस्फियर एंड द स्ट्रेटोस्फियर. ओके, और ये क्या करती है? ओजोन गैस इन दिस लेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज ऑफ द सन. सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज से ये हमें प्रोटेक्ट करती है. मैनी जेट एयरक्राफ्ट्स फ्लाई इन दिस स्ट्रेटोस्फियर बिकॉज ऑफ इट्स वेरी स्टेबल. अब देखो, बहुत से जो जेट है, एरोप्लेन है, वो यहीं पर फ्लाई करते हैं. क्यों फ्लाई करते हैं? ये बहुत ही सूटेबल है उनके लिए. कैसे सूटेबल है? देखो, हमारी ट्रोपोस्फियर में क्या होगा? वेदर प्रेजेंट है. यहाँ पर वेदर प्रेजेंट है. अगर वेदर है यहाँ पर क्या होंगे? क्लाउड्स भी होंगे. ओके, तो यहाँ पर हमारे एरोप्लेन अच्छे से फ्लाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो उनके आगे मेन रीज़न क्या है? क्लाउड्स का होना. और यहाँ स्ट्रेटोस्फियर में जो लेयर है ये बिल्कुल ही साफ़ है, ये बिल्कुल फ्री है क्लाउड्स से, और यहाँ पर अच्छे से एरोप्लेन फ्लाई कर पाते हैं. सो दैट्स वाई दिस लेयर इज़ वेरी सुटेबल फॉर द jet aircrafts. Okay, and the next one is here beta, mesosphere. It lies above the stratosphere. ऊपर आती है स्ट्रेटोस्फियर से ये, और ये 50 to 80 किलोमीटर. 50 तक तो स्ट्रेटोस्फियर था, 50 से लेके 80 किलोमीटर तक कौन सी लेयर आएगी? यहाँ पे मेसोस्फियर. ओके, एंड इट इज़ द कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ एटमोसफियर. देखो, जस्ट रिमेंबर, सबसे कोल्डेस्ट पार्ट यहाँ पर, कोल्डेस्ट लेयर कौन सी हुई? मेसोस्फियर. क्यों है? क्योंकि -90 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर होता है. एंड वन मोर अदर थिंग, जितनी भी हमारी अर्थ के बाहर से मेट्रॉइड्स आते हैं बर्न अप इन दिस मेसोस्फियर, वो यहाँ पर आने के बाद जल जाते हैं और हमारी अर्थ एटमॉस्फेयर में एंट्री नहीं कर पाते हैं. ओके, द नेक्स्ट वन इज गिवन हियर थर्मोस्फेयर. थर्मोस्फेयर, इट इज स्ट्रेचेज अबव फ्रॉम 80 to 500 किलोमीटर. ओके, देखो 80 तक तो हमारी मेसोस्फेयर थी, 80 से लेके 500 किलोमीटर तक जो हमारी नेक्स्ट लेयर आएगी वो आएगी थर्मोस्फेयर. ओके, इट इज़ एक्सट्रीमली हॉट. ये बहुत ही हॉट है. क्यों हॉट है? ये बहुत ही गर्म है. वाई? अब देखो, ध्यान से सुनना, जैसे जैसे हम ऊपर आते जाएंगे, हर एक
लेयर का टेम्परेचर चेंज होता चला जाएगा। ओके, यहाँ पर अगर ये सबसे कोल्डेस्ट पार्ट थी तो उसके बाद थर्मोस्फेयर आएगी। ये बहुत ही एक्सट्रीमली हॉट होती है। क्यों होती है? इट गेट्स वार्मर एज यू गो हायर, द एयर गेट्स थिनर। यहाँ पे एयर जो है बहुत ही थिनर है। दिस लेयर कंटेन्स इलेक्ट्रिकली चार्जेस particles as the lower level, and this layer also known as ionosphere transmits radio waves back to the earth. It is the layer where the space shuttle orbits. और ये बिल्कुल सन के पास में पड़ती है और डायरेक्ट यहाँ पर उसकी हीट आती है, इसलिए इसको सबसे गर्म लेयर भी बोला जाता है। Now student, the next one is exosphere. Exosphere, this is the topmost layer for the upper limit of the atmosphere. इसे सबसे ऊपर वाली upper layer है ये exosphere. It extends from 500 to, ये 500 से लेके 10,000, ओके 10,000 किलोमीटर तक ये क्या है, फैली हुई है। The atmosphere merges into space in the extremely thin exosphere. Thin है इसका बिल्कुल। It contains light gases. और इसमें कौन कौन से light gases होती हैं? Light, ये बहुत ही listen to me, light gases हैं। Which one gases? हाइड्रोजन एंड हीलियम। इसमें कौन कौन सी गैस आएगी? हाइड्रोजन प्लस हीलियम, ये गैसेस आती हैं इसमें। It is extremely hot in this layer. And just remember student one thing, कि हमने क्या बोला था कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है एक्सटेंडिंग अप टू अप्रॉक्सीमेटली 1600 किलोमीटर। इट मीन्स हमारे नीचे सरफेस एरिया से लेके ऊपर तक हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ है, और उसी के बीच में ही हमारी जितनी भी एटमॉस्फेयर की लेयर है वो बटी हुई है। ओके, और वो मैंने आपको अच्छे से अभी बता दिया है। अब हम यहीं तक इस वीडियो में ये पार्ट करेंगे। इन नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ओके, biosphere, oceans and seas, okay, how to protect environment and global warming. So till then keep reading.